ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೆ ನಮಃ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೇದಜನನಿ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಂ 76 ಉದ್ಧವ sent as messenger ವೃತ್ತಂ ಮಂದಾಕ್ರಾಂತ. Let's see the English meanings first, followed by Tamil meanings. Hey Krishna, you and Balarama mastered all 64 arts in 64 days at sage Sandipani's hermitage. After retrieving your teacher's deceased son from Yamaloka as Guru Dakshina, you returned to Dwaraka blowing your conch. Overwhelmed with intense love and compassion for the beautiful Gopikas, you sent your close friend Uddhava to Gokula. You also desired to show this supreme devotion the unparalleled depth of that devotion, which is rarest to find. Uddhava arrived in Gokula in the evening and brought immense joy to Nanda and Yashoda by sharing the news about you. The next day morning, the lotus eyed Gopikas spotted his chariot and rushed to meet Uddhava, abandoning all the household works. Seeing this, Uddhava dressed exactly like you. The Gopikas choked with emotion as memories of your divine pastimes rushed back. In the state of overwhelming love, they completely forgot all worldly distinctions between themselves and others. Very sadly, they questioned you, Krishna, to the messenger, only to comfort your parents while you enjoyed the company of city girls. They wept, wondering how many women could ever forget your warm embraces, sweet kisses, and deceptive words. They begged you to reveal your beautiful form just once more, exactly as you looked during the ecstasy rasa dance. With their hair loose and faces covered in sweat from the madness of love, they wept bitterly to embrace you. Now, Uddhava comforted the helpless Gopikas by delivering your profound messages filled with deep spiritual wisdom. Completely absorbed in your essence, they regained their joy while Uddhava spent several delightful days discussing your past times. Uddhava observed that the Gopikas sang your glories during their houseworks and spoke only about you even in their sleep. Seeing their actions were imitations of your pastimes and their entire world was filled with you, he was amazed. Uddhava delighted the lotus eyed Radha by sharing the private, loving words you spoke about her in lonely places. He told her how you always remembered her favorite things and missed her proud, silent nature too. He conveyed your final promise that you would return soon and that this temporary separation was meant to deepen their remembrance. You assured them that upon reaching supreme spiritual bliss, union and separation would feel exactly the same. Deeply moved, Uddhava bowed to Gopikas, realizing their unmatched devotion surpassed all knowledge of scriptures and severe austerities. Hey Krishna, you pleased to see Uddhava return in such bliss. Please cure my all diseases also. உத்தவரை தூதுவராக அனுப்புகிறார் கிருஷ்ணன். ஹே கிருஷ்ணா, நீங்களும் பலராமரும் சாந்திப்பனி முனிவரின் ஆசிரமத்தில் 64 நாட்களில் அனைத்து கலைகளையும் கற்று தேர்ந்தீர்கள். பின்னர் குருதட்சணையாக அவரின் மறைந்த மகனை யமலோகத்திலிருந்து மீட்டு பாஞ்சஜன்ய சங்கை முழங்கியபடி துவாரகைக்கு திரும்பினீர்கள். கோபிகைகளின் மேல் கொண்ட அளவற்ற அன்பினாலும் கருணையினாலும் உரிய நீ உங்களது நெருங்கிய நண்பரான உத்தவரை கோகுலத்திற்கு அனுப்பினாய். உலகிலேயே காண்பதற்கு அரிதான அவர்களின் தூய்மையான பக்தியை நீ சிறந்த பக்தனான உத்தவருக்கு காட்ட விரும்பினாய். மாலையில் கோகுலம் வந்தடைந்த உத்தவர் உன்னை பற்றி செய்திகளை அனைத்தையும் நந்தகோபரிடமும் யசோதையிடமும் நீண்ட நேரம் மகிழ்ச்சியில் பேசிக் கொண்டிருந்தார். மறுநாள் காலையில் அவர் தேரை கண்ட தாமரை கன்னி கோபிகைகள் தங்களின் வீட்டு வேலைகளை அப்படியே போட்டுவிட்டு அவரை சந்திக்க ஓடி வந்தனர். உங்களைப் போன்றே ஆடையும் ஆபரணமும் அணிந்திருந்த உத்தவரை கண்ட கோபிகள்
உங்களது லீலைகளை நினைத்து குரல் தழுதழுத்து விம்மி விம்மி பேசினர். அந்த தூய்மையான அன்பின் உச்சத்தில் அவர்கள் தன்னுடையது அந்நியருடையது என்ற உலகியல் பேதங்களை முற்றிலும் மறந்தனர். நகரத்து அழகிகளுடன் இருக்கும் நீ பெற்றோரை தேற்ற மட்டும்தான் தூதரை அனுப்பினாயா என்று கோபிகைகள் துயரத்துடன் கேட்டனர். ராசலீலையின் போது கலைந்த தலைமுடியுடனும் வியர்வை துளிகளுடன் நீர் விளங்கிய அதே அழகிய திருமேனியை ஒரே ஒரு முறை காட்டும்படி அவர்கள் வேண்டினார்கள். உன்னை மீண்டும் ஒருமுறை அணைத்து கொள்ள ஏங்கினர். தவித்துக் கொண்டிருந்த கோபிகைகளே, ஆன்மீக ஞானம் நிறைந்த உன் ஆழமான செய்திகளை கூறி உத்தவர் தேற்றினார். உன்னோடு முற்றிலும் ஒன்றிப்போன அவர்கள் மீண்டும் மகிழ்ச்சி அடைய உத்தவர் அங்கேயே சில நாட்கள் தங்கி உன் லீலைகளை பேசி பேசி மகிழ்ந்தார். கோபிகைகள் வீட்டு வேலைகளை செய்யும் போதும் தூக்கத்தில் உளரும்போது கூட உன்னை பற்றியே இடைவிடாது பேசுவதை கவனித்த உத்தவர், அவர்கள் செயல் யாவும் உமது லீலைகளின் பிரதிபலிப்பாகவும் அவர்களின் உலகம் உன்னால் மட்டுமே நிறைந்திருப்பதையும் கண்டு பிரமித்து போனார். யாரும் இல்லாத தனிமையில் நீ ராதையை பற்றிய பேசிய ரகசிய வார்த்தைகளை கூறி உத்தவர் ராதையை தேற்றினார். அவளுக்கு பிடித்தமான பற்றியும் அவளது ஊடலையும் மௌனத்தையும் நீ எவ்வளவு நினைவு கூர்ந்தாய் என்று கூறி அவளை மகிழ்வித்தார். கடமைகள் காரணமாகவே தற்காலிகமாக பிரிந்திருப்பதாகவும் விரைவில் திரும்பி வருவேன் என்றும் உன் இறுதி செய்தியை உத்தவர் அவர்களுக்கு கூறினார். நீ பிரம்மானந்தத்தை அடையும் போது இணைந்திருப்பதும் பிரிந்திருப்பதும் சமமாகவே தோன்றும் என்ற உன் வார்த்தைகளை கேட்டு அவர்கள் துயர் நீங்கினர். சாஸ்திர அறிவையும் கடுமையான தப்பங்களையும் விட கோபிகைகளின் ஒப்பற்ற பக்தியை மேலானது என்று உணர்ந்த உத்தவர் அவர்களை பணிந்து வணங்கினார். தயவு செய்து எனது நோய்கள் அனைத்தையும் குணமாக்குவாய் கிருஷ்ணா, குருவாயூரப்பா. Let's chant the shloka slowly, each shloka 2 times. गत्वा सान्दीपनिं अथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनात् आहृतं दक्षिणार्थम् दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम् गत्वा सान्दीपनिम् अथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनात् आहृतं दक्षिणार्थम् दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपशुदृश प्रेम भार प्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवश प्राहिणोरुद्धवं तम् किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासाम् भक्त्युद्रेगं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपशुदृश प्रेम भार प्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवश प्राहिणोरुद्धवं तम् किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासाम् भक्त्युद्रेगं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्य प्रतिमपि शूनं गोकुलं प्राप्य सायम् त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमया मासनन्दं यशोदाम् प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरतं शङ्किता पङ्कजाक्षः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्त्य कार्या समीयुः त्वन्माहात्म्य प्रतिमपि शूनं गोकुलं प्राप्य सायम् त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमया मासनन्दं यशोदाम् प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरतं शङ्किता पङ्कजाक्षः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्त्य कार्या समीयुः
दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसत्वेषभूषाभिरामम् स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान् उच्चकैस्तानि रुद्धालापा कथमपि पुनर्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभिदाम् अप्यलं विस्मरन्त्यः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामम् स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान् उच्चकैस्तानि रुद्धालाभा कथमपि पुनर्गद्गतां वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभिदाम् अप्यलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हाहरेनातपायाः आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां गुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हाहरे नन्दपायाः आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां गुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा रासक्रीडालुलितललितं विस्लतत्केशपाशम् मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गम् कारुण्याब्धे सकृतपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः रासक्रीडालुलितललितं विश्लतत्केशपाशम् मन्दोद्भिन्नश्रमजलगणं लोभनीयं त्वदङ्गम् कारुण्याब्धे सकृतपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोतविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिर्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोतविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिर्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यम् त्वत्वार्तैव प्रसरति मितः सैव सोत्स्वपलापः चेष्टा प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यहमुहदधिकं विस्मयात् उदवोऽयम् त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यम् त्वद्वार्तैव प्रसरति मितः सैव चोत्स्वपलापः चेष्टा प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेयम् दृष्ट्वा तत्र व्यमुहतधिकं विस्मयात् उदवोऽयम् राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीते त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी
त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीते त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् येष्यामिद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यात् इति तव गिरा सोकरो निर्व्यतास्तः येष्यामित्रागनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यात् इति तव गिरा सोकरो निर्व्यतास्तः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलात् उद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयौगात् एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलात् उद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि माम् आमह्यौगात् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द Let's chant the Dashakam fully in the medium speed. गत्वा सान्दीपनिम् अथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनाथाहृतं दक्षिणार्थम् दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृश प्रेम भार प्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवश प्राहिणोरुद्धवन्तं किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासाम् भक्त्युत्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्य प्रतिमपि शूनं गोकुलं प्राप्य सायम् त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमया मासनन्दं यशोदा प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरतं शङ्किता पङ्कजाक्षः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्त्य कार्यसमीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसत्त्वेषभूषाभिरामम् स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान् उच्चकैस्तानि रुद्धालापास्कतमपि पुनः गद्गतां वाचमुचुः सौजन्यादीन् निजपरभिदाम् आप्यलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगर सुदृशां हाहरेणातपायाः आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां गुहकवचसां विस्मरेत् कान्तकावा रासक्रीडा लुलितललितं विस्तलत् केशपाशम्
मत्तोद्भिन्न श्रमजलगणं लोभनीयं त्वदङ्गम् कारुण्याब्धे सकृतपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमतन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोत विज्ञान गर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिर्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेह कृत्यम् त्वद्वार्तैव प्रसरति मितः सैव चोत्स्वापलापः चेष्टाप्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवम् दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयातुद्धवोऽयम् राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् येषामित्रागनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरण दृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति नतिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वा स्यात् इति तव गिरा सोकरो निर्व्यतास्तः एवं भक्तिः सकलभुवने निक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलात् उद्धवं तं दृष्ट्वा दृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामह्यौगात् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.